الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ سواری کس طرح لیتے ہیں، یعنی سواری لینے کے متعلق، کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم سواری کی تلاش میں نکلے ہیں تو عربی میں ہم کیسے بات چیت کریں گے، یعنی سفر میں عربی بول چال۔ مقصد یہ ہے ہمارا کہ عرب ممالک میں سواری لینے، سمت معلوم کرنے اور کرایہ جو ہے نا وہ طے کرنے کے مؤدب جملے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کسی اجنبی سرزمین پر ہوتا ہے تو وہاں کی زبان اس کا سہارا بنتی ہے، اور اگر وہ زبان ادب و احترام سے بولی جائے تو دل جیت لیتی ہے۔ سواری لینا روزمرہ کا اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں مؤدب انداز میں ٹیکسی یا گاڑی کیسے لی جاتی ہے۔ تو پہلے کی طرح ہم پہلے مفردات سیکھیں گے، پھر جملے، پھر مکالمہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم مفردات سیکھتے ہیں۔ گاڑی کو عربی میں کہتے ہیں سیارت، ٹھیک ہے۔ سیارت معنی گاڑی، ٹھیک ہے۔ سیارت اجرتی، ٹھیک ہے، اس کا کہتے ہیں ٹیکسی، اسے ٹیکسی بھی بولتے ہیں، یعنی عربی زبان میں ٹیکسی بھی کہہ لیتے ہیں، اور سیارت اجرتی، ٹھیک ہے۔ حافلۃ بس، سائق ڈرائیور، محطۃ اسٹیشن یعنی اسٹاپ، طریق راستہ، مستقیم سیدھا، یمین دایاں، یسار بایاں، اجرت کرایہ، من فضلک برائے کرم، لو سمحت اگر آپ اجازت دیں، فک رک جائیں، سیر چلیے، آئینہ کہاں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے چند مفردات یعنی الفاظ معنی۔ اگر آپ انہیں یاد کر لیتے ہیں، ان کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان مفردات کو یاد کرتے ہیں تو آپ ان مفردات کو کسی اور جملے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جملے جو ہیں وہ ہیں السلام علیکم، یعنی ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم برائے کرم مجھے ایک ٹیکسی چاہیے، اگر ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم گاڑی کی تلاش میں نکلے ہیں نا، کیسے بات کرنی ہے، یعنی ہم اگر کہیں کہ السلام علیکم برائے کرم مجھے ایک ٹیکسی چاہیے، عربی میں کیسے کہیں گے السلام علیکم من فضلک اريد سیارۃ الاجرۃ، ٹھیک ہے، سیارۃ الاجرۃ، ٹھیک ہے۔ آگے ایئرپورٹ جانا ہے اگر آپ اجازت دیں، یعنی کہاں جانا ہے، الی المطار لو سمحت۔ یہ لو سمحت کو ہم نے پہلے بھی استعمال کیا۔ آپ لو سمحت کا معنی کیا ہے، برائے کرم، مہربانی کر کے، ایک مؤدب لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے کہیں گے کہ مجھے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے، تو کیسے کہیں گے الی المطار لو سمحت۔ اچھا، برائے کرم کرایہ کتنا ہے، یعنی کرایہ کتنا ہے۔ کمل اجرت، کمل اجرت من فضلک، من فضلک یعنی من فضلک کا مطلب کیا ہے کہ برائے کرم، ٹھیک ہے۔ کمل اجرت من فضلک۔ آگے کیا یہ راستہ جلدی لے جائے گا، هل هذا الطریق اسرع یا هل هذا الطریق اسرع، ٹھیک ہے۔ هل هذا الطریق اسرع، کیا یہ راستہ جلدی میری منزل تک مجھے پہنچا دے گا۔ برائے کرم آہستہ چلیں، تیز چلیں، تو کیسے کہیں گے، اگر کہیں گے کہ آہستہ چلیں تو کیسے کہیں گے، برائے کرم کا ہے کہ من فضلک، ٹھیک ہے۔ من فضلک کا مطلب ہے برائے کرم۔ کہیں کہ آہستہ چلیں، کیسے کہیں گے، سیر ببطء، ببطء، سیر ببطء، سیر ببطء،
अगर कहें तेज चलें तो कहेंगे सिर बिसुराती, ठीक है। आस्ता चलने को कहेंगे सिर बिबुतई, और तेज चलने को सिर बिसुराती, जल्दी चलें। अच्छा, यहाँ रुक जाएं, कैसे कहेंगे फिक होना, बराए करम का मतलब है मिन फजली का, बराए करम यहाँ रुक जाएं, कैसे कहेंगे फिक होना मिन फजली का, ठीक है, फिक होना मिन फजली का, ठीक है। ये आपका किराया है, हाजा उजरातु का, ये आपका किराया है, ये आपकी मजदूरी है, ठीक है। मजदूरी किराया एक ही चीज है ना, तो कैसे कहेंगे कि हाजिही उजरातु का, आगे बहुत शुक्रिया यानी शुक्रन जजीला, शुक्रन जजीला, ठीक है। ये थे जुमले, ठीक है। इन्हें आपने काफ़ी प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह, कुछ जुमले आपने पहले सीखे हुए हैं तो कुछ जो हमने नए सीखे हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत ज़्यादा जुमले खुद से आपको बनाने आ जाएंगे। बस ये है कि जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब हम मुकालमा करते हैं। मुकालमा है मुसाफिर और ड्राइवर के दरमियान में, ठीक है। मतलब अगर हमने ड्राइवर से, किसी से टैक्सी लेनी है, उससे बातचीत करनी, किस तरह करेंगे, तो ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। अल्लाह करे अल्लाह हमें मक्के मदीने की सैरें करवाए, हमें भी ले जाए, हमें भी हरम का मुकीम बनाए, तो हमें भी वहाँ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उनसे अगर बात करें तो कैसे करेंगे, तो मैंने पहले आपको बताई कि किसी जगह हम जाते हैं ना, किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो उनकी लैंग्वेज है। अगर हम उनकी लुगत नहीं बोलेंगे, हमें उनकी लुगत नहीं आती होगी, उनकी लैंग्वेज नहीं आती होगी, उनकी ज़बान नहीं आती होगी, तो हम तो बिल्कुल भाई एक गुमराह बंदे की तरह होंगे, मतलब भटके हुए इंसान की तरह। तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़रूरी होती है। तो जब इंसान को लैंग्वेज आती है और उसमें वो अदब एहतराम से बात करता है, तो ये दिल जीत लेती है, अगले इंसान का दिल खुश हो जाता है, यार मेरे से कितने प्यार से ये बात कर रहा है, कितनी इज्जत मुझे दे रहा है। तो वो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो हम उससे पूछना चाहते हैं वो हमें रास्ता बताता है, हमारी रहनुमाई करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात को लंबी नहीं करते, तो बात करते हैं मुकालिमा मुसाफिर और ड्राइवर का। मुसाफिर को कहते हैं राकिब, ठीक है, राकिब अर्राकिब, ठीक है। राकिब क्या कहता है अस्सलामु अलैकुम, आगे साइक यानी ड्राइवर, ड्राइवर क्या कहता है वालेकुम अस्सलाम तफज्जल, यानी वालेकुम अस्सलाम तशरीफ लाए। आगे फिर सवार अर्राकिब, सवार कहता है मिन फस्लिका उरीदु सय्यारता इला फुंदूकी, इला फुंदूकी, उरीदु सय्यारता इला फुंदूकी, बराए करम मुझे एक गाड़ी चाहिए होटल जाने के लिए, ठीक है। फुंदूक किसे कहते हैं, होटल को कहते हैं, ठीक है। सय्यारतु यानी मुझे गाड़ी चाहिए, तो टैक्सी को क्या कहते हैं सय्यारतु उजरा, यानी टैक्सी चाहिए, टैक्सी भी कहते हैं, टैक्सी भी कह लेते हैं, और सय्यारतु उजरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मुझे टैक्सी चाहिए। तो आगे है टैक्सी लेके किधर जानी है कि उरीदु सय्यरत इला फुंदूक, मुझे होटल की तरफ जाना है। आगे ड्राइवर साइक यानी ड्राइवर, बिकुल्ली सुरूरिन इला अय्यि फुंदूक, जी जरूर कौन सा होटल, यानी बिकुल्ली सुरूर का मतलब है, बिकुल्ली सुरूर का मतलब जी जी बिल्कुल जरूर जरूर बताइए किधर जाना है, किधर जाना, कौन से होटल की तरफ जाना। तो कैसे कहेंगे इला अय्यि फुंदूक, कौन से होटल की तरफ, ठीक है। आगे और राकिब कहता है कि फुंदूकुल मदीना थी, मैं मदीना होटल की तरफ जाना है। वो कमिल उजरा, तो कितना किराया है, कितनी मजदूरी लेंगे, क्या किराया आपका है बताएं पहले। आगे ड्राइवर कहता है इशरून रियाल, मेरे 20 रियाल हैं इंशाअल्लाह। आगे राकिब सवार होने वाला कहता है हसन, ठीक है। सिर मुस्तकीमन सुम्मा यमीनन इंदल इशारा, यानी सीधा चले फिर इशारे से दाएं मुड़े, क्या कहता है
जो सवार है वो कहता है इधर से जाएं, इधर मुड़ें तो हमारी मंजिल आ जाएगी। किस तरह कहेंगे? हसनन सिर मुस्तकीमन सुम्मा यमीनन इंदल अशारती, यानी इशारे के साथ वो बताता है। आगे ड्राइवर कहता है तमाम ठीक है, तमाम मतलब ठीक है। सतासिलु बी अमान इंशाअल्लाह, आप खैरियत से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। सतासिलु आप पहुंचेंगे बी अमान खैरियत से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आगे अर्राकिब जो सवार है वो क्या कहता है? फिक होना, यहाँ रुक जाए, मिन फजली का बराए करम, यानी मिन फजली का कहने से क्या होता है कि अदब वाला जुमला है, ठीक है। मिन फजली का, हाजा उजरतु का शुक्रन जजीला, ये आपका किराया है, यहाँ रुक जाए बराए करम, ये आपका किराया है, बहुत शुक्रिया। आगे ड्राइवर अला रहबी व साअती अहलन व सहलन, खुशी से खुश आमदीद। अच्छा, तो तर्जमे की मशक करें, आपको करने वाले जो काम है अमली मशक, यानी तर्जमे की मशक करें, हर अरबी जुमले का उर्दू में खुद तर्जमा करें, ठीक है। फिर मुकालमा याद करें, एक साथी के साथ जो है ना उसे दोहराएं, फिर अपना मुकालमा खुद बनाएं और मुख्तलिफ मंजिलों के साथ नए जुमले बोलें। मतलब जैसे कि अब हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तान में अपने शहर, जिस शहर में हैं तो वहाँ के किसी होटल का नाम बोलें कि मैंने वहाँ जाना है या किस जगह जाना है, तो खुद जो है ना एक मुकालमा तैयार करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब खुद आप मुकालमा तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मिन फजली का और इसी तरह शुक्रन जैसे अल्फाज सिर्फ ज़बान की खूबसूरती नहीं बल्कि इस्लामी तहजीब का अक्स होते हैं, ठीक है। बात का आगाज सलाम से करें और इख्तिताम दुआ या शुक्र पर करें, ठीक है। अल्फाज में नरमी और लहजे में शाइस्तगी हो और अंदाज में सादगी अपनाएं। तो सफ़र में सवारी लेना आम ज़रूरत है। अरबी में मुअद्दब जुमले सीखना सफ़र को आसान और राब्ते में खूबसूरती बनाता है। रोज़ाना इन जुमलों की मशक करें, मुकालमे को याद करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये आसान हो जाएगी। तो माशाअल्लाह से हमारा लेक्चर नंबर 10 पूरा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में बताएं, और कौन कौन मुस्तफ़ीद हो रहा है इससे कमेंट में लाजमी बताया करें। इससे ये होगा आपके कमेंट करने से कि दूसरे लोग जो है ना उनका शौक़ बढ़ेगा इसकी तरफ, अरबी सीखने की तरफ। जब आप जो है वीडियो को देखकर नीचे कमेंट में कमेंट लिखेंगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर भी करें, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका तोहफ़ा है और इसे जितने लोगों में आप शेयर करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको इसका अल्लाह ताला अजर देगा, क्योंकि जितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे हमारी मेहनत जो की हुई है ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, और जब ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियों में भी इजाफ़ा होगा और आपकी नेकियों में भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।